एवरीवन, माय नेम इज CMA पंक्ति वेनी। वेलकम बैक टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो स्टडी नोट नंबर 5 लर्निंग कर्व पे बना रहे हैं, जो कि पेपर नंबर 10 से है। लर्निंग कर्व होता क्या है? लर्निंग कर्व एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज डेवलप करते हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मैंने कोई भी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम परफॉर्म की तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मैं परफॉर्म करूँ तो कंपैरेटिवली मुझे कम टाइम लगता है। ये जो लेमैन अप्रोच है, यही अप्रोच यहाँ पे हमें लर्निंग कर्व थ्योरी में बताया गया है। So learning is the process by which an individual acquires skill, knowledge and ability. When a new product or a process is started, the performance of a worker is not at its best and learning phenomenon takes place. As the experience is gained, the performance of a worker improves, time taken per unit activity reduces and his productivity goes up. This improvement in productivity of a worker is due to learning effect. So what is learning effect? वो एक्सप्लेन किया है। ये चैप्टर में थियोरी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विथ थियोरी क्वेश्चंस सम्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर अच्छा वेटेज कैरी कर रहा है। सो थियोरी क्वेश्चंस पे भी फोकस कीजिएगा। अगर मैं सम्स देखूँ तो सम्स को मैंने बहुत ही इजी वे में बाइफरकेट किया है। यूजुअली स्टूडेंट्स को लर्निंग कर्व के सम्स डिफ़िकल्ट जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। There are two methods of performing sums of learning curve. First one is logarithm approach. Another one is doubling approach. Logarithm approach is nothing, is very simple. एक formula दे दिया है हमें मॉड्यूल में. We are just supposed to refer that formula, and with the help of this formula, I can solve my questions. Doubling approach, I have tried to simplify that. We'll do that after performing sums of logarithm approach. सो लॉगरिथम अप्रोच में मुझे फॉर्मूला दिया है मॉड्यूल में, y इज इक्वल टू ax टू द पावर ऑफ b. सो व्हाट इज y? y इज नथिंग एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x यूनिट्स. एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x यूनिट इज सिंबलाइज्ड बाय y. a is nothing, time required for first unit is symbolized by small letter a. x is number of units and b is my learning coefficient. कुछ भी हो सकता है, 80%, 90%, 100%. Okay, so this is my learning coefficient. Coming to doubling approach, let's do one thing. I'll go for sums of logarithm approach first. Then we'll come to doubling approach. Doubling approach क्या है वो समझ के फिर doubling approach के sums कर लेंगे. I'm referring new module, latest edition, and the page number is 199 in my book, illustration 1. यहाँ पे मुझे दिया है usual learning curve model is y is equal to ax to the power b, where y is the average time per unit for x units, a is the time for first unit, x is the cumulative number of units. Formula explain किया है. Then b is the learning coefficient. They have given you a learning rate as 80% और 80% का value भी दिया है, which is minus 0.322. They have given me a is equal to 10 hours. So a is nothing but time required for first unit. So they have given me a is equal to 10 hours. Learning rate दिया है 80%. I am required to calculate average time, that is y, for 20 units. Okay. So let us go for first question. So I'll be using my formula y is equal to ax to the power b. By using this formula, after using this formula, what I'll be doing is I'll be replacing my numbers. So a is nothing, 10 hours they have given to me in the question. A is 10 hours given to me in the question.
X they have given to me in the question 20 units and B is nothing, 80% learning rate. So I have replaced my formula with numbers. After replacing with numbers from the question, what I'm doing is I'm adding log on both the sides. So log y is equal to log 10 plus log 20 to the power of minus 0.322. Okay. नाउ आफ्टर एडिंग दिस लॉग, ये जो माइनस 0.322 है, मैं ये पूरा जो है इसको इवेल्युएट कर रही हूँ. तो ये जो माइनस 0.322 है, जस्ट बिकॉज माइनस है, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा और माइनस 0.322 लॉग 20. लॉग 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है. 0.322 इंटू लॉग 20 का वैल्यू मुझे यहाँ से लेना है. यहाँ पे मुझे लॉग 2 का वैल्यू दिया है विच इज 0.301. सो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज आई एम सपोज टू टेक लॉग 20 वैल्यू. तो ये कैसे करना है, यही मुझे यूज करना है. बस यहाँ पे 0 की जगह 1 डालना है बिकॉज ये लॉग 2 का है और मुझे लॉग 20 का चाहिए. अगर सपोज यहाँ पे लॉग 200 चाहिए होता तो मैं यहाँ पे 1.301 कर देती. अभी मुझे क्या चाहिए, लॉग 20 चाहिए, इसलिए मैं 1.301 कर रही हूँ. ठीक है, तो मैंने वो रिप्लेस किया वैल्यू. रिप्लेस करने के बाद मैं ये सॉल्व कर रही हूँ. आई एम गेटिंग 0.5811. 0.5811 मेरा लॉगैरिथम वैल्यू है. इसको वापस नॉर्मल करना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे करूंगी, बाय यूजिंग एंटी लॉग. एंटी लॉग के वैल्यूज भी मुझे दिए हैं क्वेश्चन में, विच इज 0.5811 विच इज इक्वल टू 3.812. मैंने वो एंटी लॉग वैल्यू भी यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. आफ्टर रिप्लेसिंग एंटी लॉग वैल्यू मुझे आंसर आया कि 20 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 3.812 आवर्स चाहिए होगा. एवरेज टाइम मेरा इतना है. बस यही मेरा क्वेश्चन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है. सो व्हाट आई डिड, ये फॉर्मूला में मैंने मेरे नंबर्स रिप्लेस किए जो कि क्वेश्चन से थे. वो रिप्लेस करने के बाद मैंने लॉगैरिथम दोनों साइड अप्लाई कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, इक्वल टू के राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड. लॉगैरिथम अप्लाई करने के बाद व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू इवेल्युएट दिस लॉगैरिथम इक्वेशन. वो इवेल्युएट किया, लॉगैरिथम एक वैल्यू मुझे मिले, वो लॉग वैल्यू जो मिला उसको मैंने एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दिया. तो ये जो है विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग मुझे एक्चुअल आवर्स एवरेज टाइम मुझे कितना लगा, 3.812 वो मिल गया. ठीक है, सो दिस इज माय एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स. डन. नाउ कमिंग टू टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स. टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स, तो मुझे यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है. तो वो कैसे करेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. मेरा log y, मेरा इक्वेशन अभी भी वही है, y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b. y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b. log y मुझे फाइंड आउट करना है. a जो है वो 10 आवर्स दिया है, x जो है वो कितने यूनिट्स दिए हैं, मुझे 30 यूनिट्स दिए हैं इस बार क्वेश्चन में, और b जो है वो 80% लर्निंग कर्व है. 80% का वैल्यू दिया है माइनस 0.322. ठीक है, अभी इससे मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे आंसर आ जाएगा. ये मैंने लिया log y इज इक्वल टू log 10 प्लस log 30 टू द पावर ऑफ माइनस 0.322. log y इज इक्वल टू log 10 का वैल्यू हमेशा 1 रहता है, ऑलवेज, दैट गोज विदाउट सेइंग. सो log 10 का वैल्यू 1 मैंने रिप्लेस किया. ये मैंने अगेन मैं नीचे लेके आई. log 30 का वैल्यू मैंने ऊपर से यहाँ पे जो डिटेल्स दिए हैं, log 3 का 0.4771, मुझे चाहिए log 30, तो मैंने क्या कर दिया, 1.4771 कर दिया. मल्टीप्लाई करने पे आई एम गेटिंग, मतलब आफ्टर सॉल्विंग आई एम गेटिंग 0.5244 एज माई वैल्यू. उसको मैंने एंटी लॉग के साथ सॉल्व किया. सो आई एम गेटिंग 3.345 एज माई एवरेज टाइम. 0.5244 का एंटी लॉग है 3.345. दैट इज ऑल्सो गिवन टू मी द क्वेश्चन. तो इसी को मैंने 3.345 को दैट इज माई एवरेज टाइम. Average time I'm multiplying with my number of units. My units are nothing but 30 units. ये 30 units अगर मैं 3.345 के साथ multiply करूँ, I'll be getting 100.35 hours as my total time. Total time. ठीक है.
Now coming to third question. Third question is time for units 31 to 40. 31 to 40 units मुझे उनका मुझे टाइम बताना है. तो 30 यूनिट्स का तो मैंने अभी कैलकुलेट किया था. मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैंने कैलकुलेट किया और मुझे आया 100.35 आवर्स. तो मैं क्या करूँगी इस क्वेश्चन में, मैं 40 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर लूँगी. तो 40 यूनिट्स के लिए जो भी आंसर आएगा सॉरी, और 30 यूनिट्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, तो ये दोनों का टाइम जो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो मेरा 31 टू 40 यूनिट्स का एवरेज टाइम हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन में मैंने 40 यूनिट्स के लिए सॉल्व किया है, विच इज़ गिविंग मी 121.96 आवर्स. तो मुझे किसके लिए निकालना है, टाइम फ्रॉम 31 टू 40 यूनिट्स. तो 31 टू 40 यूनिट्स के लिए मैं कैसे करूँगी, मेरा ये जो 40 आवर्स था वो -30 आवर्स सॉरी -30 आवर्स इज गिविंग मी 21.61 आवर्स फॉर 31 टू 40 यूनिट्स. Okay, so this was my question 1. Now heading towards question 3, that is again for logarithm. Question 2 is for doubling approach. So once we complete logarithm approach, we will be taking doubling approach. So question 3 belongs to doubling approach, logarithm approach. We'll complete that and then we'll go for question 2, 4 and likewise other questions. So ZPLC experienced difficulty in its budgeting process because it finds it necessary to qualify learning effect as a new product are introduced. नए products introduce किए गए हैं तो उनके लिए difficult हो रहा है find out करना. So substantial product changes occur and result in the need for retraining. An order for 30 units of a new product has been received by ZPLC. So far 14 have been completed. 30 units का order मिला था, उसमें से 14 units अब तक complete हो चुके हैं. ठीक है. The first unit required 40 direct labor hours. 40 direct labor hours है 20 and total of 240 direct labor hours has been recorded for the 14 units. Production manager expects an 80% learning effect for this type of work. The company used standard absorption costing. Direct cost attributed to the center in which the unit is manufactured and its direct material cost are as follows. So मुझे costing details दिए हैं, direct material, direct labor, variable overheads, fixed overheads. So direct material 30 per unit, direct labor 6 per hour, variable overheads 0.5 per direct labor hour, fixed overhead 6 per 4-week operating period. There are 10 direct employees working a 5-day week. 5-day week, please highlight 5-day week. 10 employees, 8 hours per day. Personal and other downtime allowances are 25% of total available time. The company usually quotes a 4-week delivery period for orders. ठीक है, यहाँ तक मेरे क्वेश्चन में मुझे जो भी डिटेल्स दिया था वो मैंने नोट करके रखा है. तो 30 यूनिट्स बनाने बोले थे, उसमें से 14 यूनिट्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए एंड टोटल कितना है 240 डायरेक्ट लेबर आवर्स. ठीक है. फिर क्या बताया, 80% मेरा लर्निंग कर्व है. मुझे कॉस्ट डिटेल्स दिए हैं. फिर मुझे बताया है कि 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ है, मतलब मेरे जो एम्प्लॉयज़ है वो 10 है. वो 5 डेज के लिए काम कर रहे हैं. एक डे का काम जो है वो 8 आवर्स है. सो 10 × 5 × 8. और जो डाउन टाइम है वो 25% है ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम. और क्या बताया है, द कंपनी यूजुअली कोट्स अ 4-week डिलीवरी पीरियड फॉर ऑर्डर्स. ठीक है, यहाँ तक डन. नाउ मुझे क्या करना है, डिटरमाइन वेदर अजम्पशन ऑफ एन 80% लर्निंग इफेक्ट इज अ रीजनेबल वन इन दिस केस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला y = ax⁴b. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दैट इज इजी. टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 14 यूनिट्स. 14 यूनिट्स थे हमारे क्वेश्चन में. 14 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मुझे टाइम चाहिए. सो ए मुझे दिया है 40 आवर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स.
तो मैंने वहाँ से 40 ले लिया. X is nothing but 14 units minus 0.322. So what is minus 0.322? 80% लर्निंग रेट का लर्निंग कोएफिशिएंट का रेट है. वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि मुझे माइनस 0.322 वहाँ पे बताया है. सो वो सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग 50 यूनिट्स. वो सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग 50 यूनिट्स. Okay, after adding log, everything will remain same. After adding logs and everything I go for, I'll be getting my average time as 11.35 hours. Okay. Sorry. So I'll be solving this. So log y, यहाँ पे log y is equal to log 40 plus log 14 minus 0.322. log y as it is रहेगा log 40 minus 0.322 log 14. ये सॉल्व करने के बाद आई विल बी गेटिंग माई आंसर एज 240 आवर्स. और ये जो मुझे लॉगरिथम के डिटेल्स चाहिए वो भी यहाँ पे मैंने कोट करके रखा है. log 40 का वैल्यू है 1.6021. सो 1.6021 मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ सो आई विल बी गेटिंग 17.14 और 17.14 सॉरी आई विल बी गेटिंग 1.23 0.322 इंटू 0.322 इंटू 14. ये जो है ये मुझे माइनस करना है. 1.6021. आई एम गेटिंग माई आंसर एज 1.233. उसका एंटी लॉग लिया तो मुझे आ रहा है 17.14. वो मैंने 14 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 239.96 आ रहा है जो कि है 240 आवर्स. ठीक है. वैसे ही मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स likely to be required for an expected second order of 20 units. expected second order of 20 units. मेरा second order next order के लिए मुझे पूछा है. ओके तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 30 यूनिट्स को लेके बेस आई विल बी गोइंग फॉर माई क्वेश्चन. आई विल बी यूजिंग माई फॉर्मूला एंड आई विल बी कंप्लीटिंग इन अ सेम मैनर जैसा हमने अब तक देखा. वो फॉर्मूला यूज़ करके लॉगरिथम यूज़ करके मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो 30 यूनिट्स का मैं कैलकुलेट करूँगी और 50 यूनिट्स का कैलकुलेट करूँगी. ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो मुझे 20 यूनिट्स का टोटल टाइम कैलकुलेट करके दे देगा. फिर थर्ड क्वेश्चन है यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर इनिशियल ऑर्डर. एग्जामिन द प्रॉब्लम्स विच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट. तो ये जो मुझे कॉस्ट डेटा दिया है ये यूज करके ये कॉस्ट डेटा यूज करके मैं मुझे ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है. मैं ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. तो यहाँ पे मुझे पहले मैन आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो मैन आवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे 10 जो कि मेरे डायरेक्ट लेबर आवर्स है 8 आवर काम कर रहा है. एक दिन का वर्किंग आवर्स कितना है 8 आवर्स. 5 डेज इन अ वीक काम कर रहा है और 4 जो है वो मेरा क्या है 4 वीक डिलीवरी पीरियड है. तो वैसा करके मुझे 1600 मेरे टोटल मैन आवर्स मिल रहे हैं. उसमें से 25% बताया था कि डाउन टाइम है. तो 25% अगर मैं करूँ तो 400 आ रहा है. तो मेरा टोटल वर्किंग आवर्स कितना आ रहा है 1200. अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट इस पर कैलकुलेट करना है तो 6000 डिवाइडेड बाई 1200 दैट विल गिव मी ₹5. मेरा ये जो टोटल कॉस्ट है वो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में. मटीरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स मुझे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो बेस्ड ऑन दिस आई विल बी कैलकुलेटिंग माई कॉस्ट एंड आई विल बी गेटिंग माई कॉस्ट एज 5516.10. सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3.
नाउ कमिंग टू डबलिंग अप्रोच. डबलिंग अप्रोच क्या है? डबलिंग अप्रोच इज़ वेरी इजी. मेरे यूनिट्स हैं, एक यूनिट को परफॉर्म करने के लिए मुझे आवर्स दिए हैं, एवरेज टाइम कितना लगेगा, और मुझे यहाँ पे दिया कि 80% जो है वो लर्निंग कर्व है. तो ये कैसे करना है? डबलिंग अप्रोचेस, ये जो यूनिट्स होते हैं उनको मैं डबल करूंगी, मतलब 1 into 2, 2 into 2 will give me 4, 4 into 2 will give me 8, 8 into 2 will give me 16. ऐसे करके मुझे 16 into 2 will give me 32. ऐसे करके मुझे डबलिंग यूनिट्स मिल रहे हैं. मेरे यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसा मैं लर्निंग कोएफिशिएंट, मतलब आई एम गेनिंग द लर्निंग एफिशिएंसी, और मेरा जो टाइम रिक्वायर्ड टाइम है टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी इज रिड्यूसिंग. सो ये कैसे आया? 1000 into 80% 800, 800 into 80% 640, 640 into 80% 512, 512 into 80% 410. ऐसा करके मुझे एवरेज टाइम मिला. टोटल टाइम कैसे मिल रहा है? 1 into 1000, 2 into 800, 4 into 640, 8 into 512. So I'm multiplying my units with average time. I'm getting total time. Okay. So same concept we will be using for our question number 2. Learning curve as a management accounting has now become or going to become an accepted tool in industry, for its applications are almost unlimited. When it is used correctly, it can lead to increased business and higher profits. When used without proper knowledge, it can lead to lost business and bankruptcy. State precisely your understanding of the learning curve. Theory of learning curve. Areas where learning curve may assist in management accounting, and illustrate the use of learning curves for calculating expected average unit cost of making 4 machines, 8 machines. ठीक है. So पहले दो first 3 questions are theory questions. 4th question हमारा practical question है. तो यहाँ पे वो लोग ने मुझे डेटा दिया है. डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है? 1000 आवर्स है. 90% एफिशिएंसी रेट है. 15 रुपीज़ लगता है मुझे 1 घंटे का लेबर कॉस्ट. 1,50,000 इज माई मटीरियल कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? ईदर साइज ऑर्डर्स के 60,000. ठीक है. अभी statement showing computation of cost of making 4 machines and 8 machines. तो मैंने एक मशीन का मुझे पूरा डिटेल दिया है. तो फर्स्ट मशीन बनाने के लिए मुझे 1000 आवर्स चाहिए. 15 रुपीज़ मेरा 1 घंटे का कॉस्ट है. तो 1000 आवर्स का कितना होगा? 15,000. मटीरियल फिक्स्ड है. कितना भी मैं कुछ भी करूँ, मटीरियल का मुझे 1,50,000 का ही लगेगा. फिक्स्ड एक्सपेंस है वो मेरे लिए. फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 दिया है. 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन्स. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ईदर साइज ऑर्डर मेंशन किया है. सो ये तीनों को मिला के मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है? 2,25,000. यहाँ पे डबलिंग अप्रोच 1 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8. ऐसा करके मुझे डबलिंग अप्रोच आया. बाय यूजिंग दिस लर्निंग रेट, 1000 into 90% 900, 900 into 90% 810, 810 into 90% 729. सो ये मेरा एवरेज टाइम आ गया. अभी मुझे लेबर आवर दिया है, लेबर कॉस्ट दिया है 15 रुपीज़ पर आवर. तो 1000 into 15, 900 into 15, 1000 into 15, that is giving me 15,000. 900 into 15, that is giving me 13,500. 810 into 15, that is giving me 12,150. 729 into 15, that is giving me 10,935. मटीरियल कॉस्ट में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए कोई भी मेरा नंबर ऑफ मशीन रहेगा मटीरियल कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा. 1,50,000, 1,50,000. ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट में वो लोग ने मेंशन किया है साइज ऑर्डर पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब 2 मशीन तो मेरा 30,000. तो ये कैसे आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन्स. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन्स. ओके, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 1, 60,000 डिवाइडेड बाय 2, that is giving me 30,000. 60,000 divided by 4, that is giving me 15,000. 60,000 divided by 8, that is giving me 7,500.
ठीक है। नाउ कमिंग टू टोटल कॉस्ट, ये जितने भी मेरे खर्चे हैं वो मुझे ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 15,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 दैट विल गिव मी 2,25,000। 13,500 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 दैट विल गिव मी 1,93,500 एंड सो ऑन। ठीक है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है 4 मशीन्स और 8 मशीन्स का कॉस्ट डिटेल बताने के लिए। सो मैं ये टेबल से 4 मशीन्स और 8 मशीन्स का कॉस्ट लेके यहाँ पे उनको आंसर कर दूंगी। बस इतना ही है डबलिंग अप्रोच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिए थे वो मैंने यूज़ किए। तो नंबर ऑफ मशीन्स को मैं डबल करती जा रही हूँ। एक मशीन का मुझे डिटेल्स दिया है 1 into 2, 2 into 4, 2 into 2 दैट विल गिव मी 4। 4 को मैंने डबल किया तो 8। और मेरा जैसा यहाँ पे मशीन्स बढ़ रहा है वैसा मेरा जो लर्निंग रेट है वो कम होते जा रहा है। ठीक है। और मैंने क्या किया, मेरा जो एवरेज टाइम था उसमें मैंने लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई किया। मटेरियल फिक्स्ड था, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा नंबर ऑफ मशीन्स के साथ वेरी हो रहा था, सबको ऐड किया, मुझे टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। A firm received an order to make and supply 8 units of standard product which involves intricate labor operations. First unit was made in 10 hours. मेरा जो first unit है वो कितने में बन रहा है, 10 hours में। It is understood that this type of operations is subject to 80% learning rate. This type of operation is subject to 80% learning rate. Workers are getting a wage rate of ₹12 per hour. Workers को क्या मिल रहा है, wages जो मिल रहे हैं वो 12 per hour के हिसाब से मिल रहे हैं। What is the total time and labor cost required to execute the above order? Total time क्या है और labor cost क्या है execute करने के लिए above order। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नंबर, मुझे फर्स्ट यूनिट का पूरा डिटेल्स दिया, तो यूनिट 1 कितना है, 10 hours है, राइट। एंड मुझे टोटल टाइम कैसे मिलेगा, 10 hours into 1 unit that will give me total time. So it is nothing but 10 hours into 1 unit that will give me total time. यहाँ पे डबलिंग अप्रोच यूज करके 2 into 1 will give me 2, 2 into 2 will give me 4, 4 into 2 will give me 8, 8 into 2 will give me 16 and 16 into 2 will give me 32। ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो यहाँ पे मेरा टाइम रिक्वायर्ड है वो भी कम होते जाएगा। सो 10 into 80%, 80% इज नथिंग बट माई लर्निंग रेट जो मुझे क्वेश्चन में दिया है। सो 10 into 80% will give me 8, 8 into 80% will give me 6.4, 6.4 into 80% will give me 5.12, 5.12 into 80% will give me 4.096, 4.096 into 80% will give me 3.2768. Okay. So this is my average time. Okay. अभी मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू मेरा एवरेज टाइम दैट विल गिव मी टोटल टाइम। सो 1 into 10 10, 2 into 8 16, 4 into 6.4 25.6 एंड सो ऑन। सो टोटल टाइम मुझे ये दो एवरेज टाइम एंड नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से मुझे टोटल टाइम आ रहा है। ठीक है। ओके। आते हैं यहाँ पे वापस क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड। सो टोटल टाइम और लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड वो हमें उनको बताना है टू एग्जीक्यूट अबव ऑर्डर। अबव ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या टोटल टाइम और लेबर कॉस्ट है वो हमको बताना था। तो फर्स्ट 8 यूनिट्स के बारे में पूछा है ना, तो फर्स्ट 8 यूनिट्स को बनाने के लिए 40.96 आवर्स चाहिए, 40.96 आवर्स, और तो वो हमने बता दिया टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 40.96 आवर्स। ओके। फिर हमें बता दिया है कि 12 रुपीज जो है वो 1 घंटे का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि कितना लेबर कॉस्ट भी लगेगा, तो 40.96 into 12 दैट विल गिव मी 491.52 एज माई लेबर कॉस्ट। दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 1। सो टोटल टाइम इज 40.96 आवर्स एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड इज 491.52। ठीक है। Now coming to next question. If a repeat order of 24 units is also received from the same customer, what is the labor cost?
तो मुझे 24 यूनिट्स का डिटेल्स देना है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो मुझे 24 नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी कर लूँ 24 यूनिट्स नहीं आएगा। तो 24 कैसे वो वर्कआउट किया है, 32 माइनस 8 यूनिट्स, मतलब मैं 32 का डिटेल्स लूंगी दैट इज 104.86 और मैं 40.96 का डिटेल्स लूंगी, ये दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो मुझे 24 यूनिट्स के लिए वर्क करके दे देगा। ठीक है, तो 32 यूनिट्स का कितना है टाइम, 104.86 और 8 यूनिट्स का क्या है टाइम, 40.96। ये दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो मुझे 24 यूनिट्स का डिटेल्स मिल रहा है। सो दैट इज 63.90 आवर्स इंटू 12 दैट इज माई लेबर कॉस्ट विल गिव मी 766.80। ओके, सो यही हमें पूछा था ये क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था टोटल टाइम कितना चाहिए और लेबर कॉस्ट क्या है, तो हमने वो बता दिया कि टोटल टाइम फर्स्ट 8 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल टाइम कितना चाहिए और लेबर कॉस्ट कितना चाहिए। फिर 24 यूनिट्स के बारे में पूछा है, तो 24 यूनिट्स का हमने कैसे किया, 32 यूनिट्स माइनस 8 यूनिट्स दैट इज गिविंग अस 24 यूनिट्स डिटेल्स। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ही किया है क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन अलग नहीं है, वो ही सेम क्वेश्चन है। सो देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस इन दिस मॉड्यूल। यहाँ पे ये जो दिया है ग्लॉसरी में एक्सपीरियंस कर्व एंड लर्निंग कर्व, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाइएगा। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कंफर्टेबल हो कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।